بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اس کا خاوند شہر کی کسی فیکٹری کا ورکر تھا جو 1 سال قبل فیکٹری کے اندر بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم دنیا سے منہ موڑنے سے قبل وہ اپنی زوجہ کو 6 بچوں کی سوغات دے گیا تھا، جن میں سے ایک بچہ ذہنی اب نارمل بھی تھا۔ فیکٹری کے مالک شیخ صاحب ایک نیک، ہمدرد اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ اپنی فیکٹری ورکرز کی نماز جنازہ میں بنفس نفیس شریک ہوئے اور چند ہزار روپے نقد بیوہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس غمناک موقع پر انہوں نے بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہ صرف اسے حوصلہ دیا بلکہ اس کے خاوند کی ملازمت کی قانونی واجبات بھی جلد از جلد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ تاہم بعد میں بیوہ نے فیکٹری کے دستے میں بڑی جوتیاں گھسائی، مگر بدقسمتی سے یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ شیخ صاحب تو ہر حال میں بیوہ کو اس کا حق دینا چاہتے تھے، مگر بقول فیکٹری فائنانس ڈائریکٹر کے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ واجبات کی کاغذات کی تیاری میں بڑی پیچیدگیاں اور رکاوٹیں حائل تھیں۔ آخر جب ایک دن اس پر فیکٹری کے دروازے بند کر دیے گئے تو اس نے کسی کے مشورے پر لیبر قوانین کے تحت کارروائی کے لیے اعلی حکام کو درخواستیں بھجوانا شروع کر دیں، مگر اس کی کہیں سنوائی نہیں تھی کہ بڑے بڑے سرکاری ادارے چلانے کا بارگنہ اٹھانے والوں کے پاس ایسی چھوٹی موٹی درخواستوں پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اب جو شیخ صاحب کے دیے پیسے ختم ہو گئے اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تو غمِ جاں اور غمِ جانا کے عجیب امتزاج کے ساتھ بیوہ پر ایک نئی مگر خوفناک زندگی اشکار ہوئی۔ تاہم اس کی ہمت نہ اس نے ہاری اور لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے بمشکل بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا تو رنگ و نور کا سیلاب امڑ آیا۔ اہل محلہ نے خیرات اور افطار پارٹیوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے ثواب دارین سمیٹا۔ البتہ بیوہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ کسی کو اس کا خیال آیا، اگرچہ متقی حضرات پر مشتمل زکوٰۃ کمیٹی بھی موجود تھی، مگر مانگنے سے شرمانے کی عادت نے اس کے بچوں کی زندگی مشکل بنائے رکھی۔ اس ماہ سیام کا ایک گرم اور لمبا دن سر کے شام کو بھی جب افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر گھڑے کے پانی سے روزہ افطار کیا۔ وہ پیاس کی شدت سے بہت پانی چڑھا گئی اور بیمار ہو گئی۔ پے در پے کیسے حالت غیر ہو گئی تو اس نے ہمت کر کے دوپٹے کے کونے سے اپنی آخری پونجی 50 روپے کے 2 نوٹیں باندھے اور پھر کسی طرح عطائی کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ عطائی نے اسے ایسا انجیکشن گھونپا کہ بیچاری اگلے حال سے بھی گئی۔ اگلے دن شام تک وہ نیم جاں ہو چکی تھی۔ رات کو وہ چپکے سے دیوار کا سہارا لیتی بمشکل پڑوسن کے ہاں پہنچی اور پہلی دفعہ رازداری سے بچی کچی روٹی کی خیرات کی درخواست کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں نے بچوں کو بہلانے کی خاطر ہنڈیا میں سادہ پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا تھا کہ کھانا پک رہا ہے۔ باقی تو کھانے کے انتظار میں ایک ایک کر کے سو گئے، لیکن پاگل نہیں سو رہا اور اس نے بھوک سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ کیا کروں؟ جلا جو ہوا اسی شب سحری سے قبل ہی اس کے جسم میں پانی ختم ہو گیا۔ بیوہ نے ٹوٹی چارپائی پر لیٹے لیٹے زیر لب اپنا تکیہ کلام واہ مالک تیری شان دہرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ محلے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل محلہ نے دکھی دل کے ساتھ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کے روح کے ایصال ثواب کے لیے مشترکہ طور پر پورے محلے کے لیے افطاری کا بندوبست کیا اور اس کے بچوں کو یتیم خانے پہنچا کر اپنے اخلاقی فرائض سے بطریق احسن سبکدوش ہو گئے۔ ماں کتنا خوبصورت اور شیریں لفظ ہے، کتنا پرسکون اور اطمینان سے بھرپور، کتنا تحفظ بڑا۔ اس لفظ کی خوبصورتی اور کشش کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے ماں کی محبت اور چاہت کے مزے لیے ہوں۔ ماں جیسی بلند ہستی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں سے ایک انوکھی تخلیق ہے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ماں کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب وہ دنیا کے رنج و غم سے بہت دور خاموشی اور سنسان بستی میں من و مٹی جا کے سوتی ہے۔ اس عظیم نعمت کی قدر اس کے بچھڑ جانے کے بعد زیادہ ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے اس کی پیدائش سے اب تک جتنی نعمتیں میسر تھیں وہ سب واپس لے لی گئیں۔ 15 جون 2011 کو میری ماں لیاقت نیشنل ہسپتال کراچی کے ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں شفٹ ہوتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ کر کہتی ہیں کہ آج بہت دن بعد آسمان دیکھا ہے، اور کچھ گھنٹوں بعد ان کی روح آسمان کی بلندیوں کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔ اماں کے سیدھے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ان کے سرانے کھڑا تھا، کبھی ان کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوتی تو کبھی ڈھیلی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وقت جدائی آ گیا ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹ ٹوٹ کر مسلسل اماں کے ہاتھوں پر بکھر رہی تھی۔
इस एक लम्हे को माँ की आंख खुली और एक मध्यम सी रोशनी टूटी हुई आवाज में कहा अर्शी, और हाथों की गिरफ्त बिल्कुल ढीली हो गई। मैंने अम्मा के कान के करीब जाकर बमुश्किल लफ्ज अदा किए, अम्मा अल्लाह हाफिज। और अम्मा अपने रब से जा मिले। ए नफ्से मुतमन्ना, चल तो अपने रब की तरफ, तुझसे राजी हो वो तुझसे राजी हो। अम्मा को हमसे जुदा हुए आज 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन यूं लगता है अभी कहीं से अम्मा की आवाज आएगी। माँ बाप ने खुद मुश्किलात में जिंदगी गुजारी, लेकिन हमें अच्छी तालीम दिलवाई और बेहतरीन तरबियत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा ने अपनी जिंदगी में हमारी तालीम और तरबियत का बहुत ख्याल रखा। आज हम जो कुछ या जिस मुकाम पर हैं, माँ की दुआओं और तरबियत और वालिद की मेहनत के नतीजे से हैं। अम्मा मेरे लिए दुआओं की मशीन थी। मैं जब भी किसी खास काम के लिए खसूसी दुआओं की दरख्वास्त करता तो इनके हाथ बुलंद हो जाते, सजदे लंबे हो जाते और मेरा काम हो जाता। अक्सर वो काम जिन्हें मैं नामुमकिन समझता था, हमारी इब्तदाई तर्ज जिंदगी में बहुत कठिन थी, और इन कठिन हालात में भी हमारे वालिदैन ने हमारी ख्वाहिशात पूरी की। कभी हमें एहसास कमतरी का शिकार ना होने दिया। लेकिन अब एहसास होता है कि हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए माँ बाप ने न जाने अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात का गला घोंटा होगा। मुझे बचपन की कई वाकयात याद हैं, जिसमें से एक बहुत दिल दहला देने वाला वाकया है। घर में बहुत अच्छा खाना बना था, लेकिन शायद अम्मा को एहसास हो गया था कि खाना ज्यादा नहीं है कि हम तमाम घर वाले खा लें। अम्मा ने खाना देने से पहले कहना शुरू कर दिया कि आज तबीयत बहुत खराब महसूस हो रही है, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, तुम लोग खाना खा लो, मैं सोती हूँ। हम खाना खा चुके और सब सो गए। कुछ देर बाद आंख खुली तो बर्तनों के शोर की आवाज आई। देखा तो अम्मा पतीली में रोटियां रगड़ रगड़ कर इस तरह से खा रही थी जैसे शदीद भूख लगी हो। ऐसे न जाने कितनी रातें मेरी अम्मा ने हमें पेट भर के खिलाने के लिए देखी होंगी। मैं अक्सर लोगों से सुना करता था कि वक्त के साथ साथ इंसान का सदमा कम हो जाता है। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, लेकिन अम्मा की जुदाई का सदमा 6 साल गुजर जाने के बाद भी मेरे दिल में इस तरह ताजा है जैसे अम्मा को दफनाए चंद मिनट ही गुजरे हों। अम्मा के इंतकाल के बाद वालिद हयात थे, जिनके पास बैठकर अम्मा की यादें और अम्मा की बातें करते थे। कुछ गम मुंदमिल हो जाते हैं, तो इस सिलसिला भी अम्मा के इंतकाल के बाद 6 साल जारी रहा और वालिद साहब भी इस साल फरवरी में हमसे जुदा हो गए और जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। वालिद के इंतकाल पर एक मेरे बहुत अजीज, बहुत मोहसिन मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे तासीर करते हुए कहा कि वालिदैन औलाद के लिए सारी जिंदगी दुआ करते हैं। तुम्हारे लिए ये सिलसिला अब खत्म हो गया है, अब इनको तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मैं अपने वालिदैन की वफात के बाद आज खुद को बहुत तन्हा महसूस करता हूँ। गो कि मेरे करीब बहुत से मोहब्बत करने वाले रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत का नेमुल बदल कोई नहीं। हालत बीमारी में और अम्मा का परेशानी पर हाथ रख न देना ही महसूस होता था कि आबे हाथ पी लिया हो। अब जबकि मोहब्बत, शफकत, प्यार और दुआओं का वो बाब मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो गया है और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मेरे गिर्द अम्मा की दुआओं का मजबूत हिफाजती हसार टूट चुका है और अब बहुत मोहतात होकर चलता हूँ। अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा होने की वजह से अपने वालिदैन के साथ सबसे कम बरस मेरे ही गुजरे। आज भी शायद ही कोई दिन इनकी यादों के बगैर गुजरता हो। अल्लाह ताला इन्हें अपनी जवार रहमत में आले मुकाम दे और हमारी बेहतरीन तरबियत और परवरिश करने पर इन्हें अजर अजीम अता फरमाए और इनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। मोहम्मद अब्दुल्ला नामी 30 साल नौजवान अपनी मां को लेडी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लाया। लड़के की मां चेकअप के लिए बैठने के बजाय उठ उठकर शरारतें करना और भागना चाहती थी। वो बार बार अपनी चादर उतार फेंकती, लेकिन इसका बेटा प्यार के साथ इसे बहलाता और इसकी चादर दुरुस्त कर देता। इस दौरान इससे अपने बेटे के हाथ पर काट भी लिया और इसके चेहरे पर मारा, लेकिन इसका बेटा मुस्कुराता रहा और बहुत प्यार से अपनी मां का ध्यान रखता रहा और डॉक्टर को मान के मरीज की तकलीफ की बाबत करता रहा। डॉक्टर ने इस लड़के से पूछा कि ये औरत कौन है, तो इसने जवाब दिया, मेरी माँ। तब डॉक्टर ने इससे पूछा कि इसकी ये हालत कब से है। लड़के ने जवाब दिया कि इसकी माँ को इसके बचपन में इसके बाप ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से माँ ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। लड़के ने मजीद बताया कि पहले मेरी नानी मेरी माँ का ख्याल रखती थी, पर जब वो 10 साल का था तो नानी फौत हो गई, तो तब से वो खुद अपनी माँ का ख्याल रखता है। इसने बताया कि जब वो सोना चाहता हो तो अपने पाँव माँ के पाँव के साथ बांध लेता है ताकि अपनी माँ को कोई नुकसान न पहुंचा ले या अकेली घर से न निकल जाए। डॉक्टर के चेकअप के दौरान लड़के की मां ने बच्चों की जिद से चिप्स मांगना शुरू कर दिए, तो इसके बेटे ने इसे चिप्स खिलाए, जिस पर इसकी मां ने खुशी से हंसना शुरू कर दिया और लड़का अपनी मां को चिप्स खाता और जूस पिलाता रहा। फिर अपनी मां का मुंह रुमाल से साफ किया। डॉक्टर ने कहा, ये आपकी मां है,
लेकिन आप उसको नहीं जानते। लड़के ने जवाब दिया, बेशक वो नहीं जानती कि मैं इसका बेटा हूँ, लेकिन जिसने मुझे पैदा किया वो जानता है कि मेरी माँ है। इस दौरान माँ ने क्लिनिक में लगे टीवी पर खाना काबा की तस्वीरें देखी तो माँ ने बेटे से कहा, अरे तो मुझे मक्का क्यों नहीं लेके गए? बेटे ने जवाब दिया, जुमेरात को। माँ, क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं आपको जुमेरात को उम्रे के लिए ले जा रहा हूँ? डॉक्टर ने इससे कहा कि अपनी माँ को उम्रे के लिए मक्का मुकरमा ले जाएंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। बेटे ने कहा कि जब भी मेरी माँ उम्रा के लिए जाने का कहती है तो मैं इसे मक्का मुकरमा ले जाता हूँ, चाहे वो कितनी बार जाना चाहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ कुछ चाहे और मैं इसकी ख्वाहिश इसके साथ होने के बावजूद पूरी ना करूं। इस माँ बेटे के जाने के बाद डॉक्टर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बहुत रोया। डॉक्टर ने वाकया बयान करते हुए कहा कि मैंने वालिदैन के हुकूक की बाबत बहुत कुछ सुना और पढ़ा, लेकिन इस लड़के की तरह माँ की खिदमत करते पहले कभी किसी को नहीं देखा। इस लड़के की माँ को बिल्कुल शऊर नहीं कि वो इसका बेटा है, लेकिन इसका बेटा इसको इंतहाई प्यार के साथ संभालता और इसका ख्याल रखता है और सिर्फ अल्लाह करीम की रजा के लिए अपनी माँ की खिदमत के लिए पूरी कोशिश करता है। हालांकि वो इसे मेंटल अस्पताल दाखिल करा सकता था, लेकिन इसने अपनी माँ की खिदमत और इसकी देखभाल खुद करने का इंतखाब किया ताकि जन्नत का दरवाजा इसकी जिंदगी के बाद भी इंशाल्लाह खुला रह सके। बेशक जन्नत माँ के कदमों में है, यहाँ तक कि अगर आप अपनी सारी जिंदगी अपने वालिदैन के लिए कुर्बान कर दें तो आपने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। मौसम सरमा की बात है कि सर्दी की वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकला कम कर दिया और ऊपर से मुसलसल बारिशों की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा था। मैं भी आज काफी दिन बाद जरूरी काम से बाहर निकली। शाम का वक्त था तो थोड़ा आगे जाने पर मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसे देखना चाहिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसकी जानिब जब देखा तो मैं अपनी हालत बयान नहीं कर सकती कि इसे देखकर मेरा दिल कितना दुखा था। मैंने देखा कि 70 साल का बूढ़ा इंसान जिसे सही तरह से बात नहीं हो रही थी और हाथ में एक स्टिक पकड़े साथ साथ एक बिस्तर पास रखे सड़क की दूसरी तरफ बेंच पर बैठा हुआ था। कपड़े इतने गंदे थे कि पास से गुजरने वाला भी बदबू बर्दाश्त ना करता। मैंने पास जाकर इस बाबा जी से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और इतनी सर्दी में और शाम के वक्त इधर क्यों बैठे हैं? वो रोने लगे और कहने लगे, बेटा मेरी बेटी और इसका शौहर मुझे छोड़कर गए हैं। कब से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आए। मुझे कह रहे थे कि हमें काम है, हम करके आते हैं, आप इधर रुको। 3 घंटे गुजर के अभी तक वापस नहीं आए और मैं कहाँ जाता। मेरे मजीद पूछने पर इन्होंने बताया कि 3 बेटे हैं और 5 बेटियां, मगर ना बेटों के घर जगह है मेरे लिए और ना बेटियों के घर। जब मैं कमाता था बेटियां भी मिलती थी और बेटे भी अब्बा जी बोलते थे, मगर जब से मैं बीमार हो गया हूँ उम्र के ज्यादा होने की वजह से मुझसे अब काम नहीं होता और अब मुझे अब्बा जी की जगह बूढ़ा बुलाया जाता है। और ये सब सुनकर मेरा दिल दर्द से फट चुका है कि बेटे तो चलो ऐसे होते हैं, मगर बेटियां तो बाप को संभाल सकती थी। लानत ऐसी औलाद पर जिसने अपने बाप का दर्द भरा दिल और अपनी आंखों में आंसू नजर नहीं आते। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत बात है। मैंने इनको हौसला दिया और अपने घर ले आई और इनको साफ कपड़े पहनाए और खाना खिलाया, मगर वो फिर भी अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे जैसे वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। अपने खून ने इनको पराया कर दिया था और मैं भी घरेलू मसलों की वजह से ज्यादा दिन नहीं रह सकती थी। इससे मैंने एक औरत जो मुख्तलिफ घरों का काम करती थी इसे पैसे दिए और बाबा जी को इसके घर रखवा दिया। मैं हर हफ्ते तो नहीं, मुझे देखकर एक लफ्ज बोलते हैं, औलाद वो नहीं होती जो जिसको हम पैदा करते हैं, औलाद वो होती है जो आपको संभालती है। मैं मुस्कुरा कर आ जाती हूँ, मगर मुझे बहुत दुख होता है ऐसे अफराद को देखकर। खुदारा कुछ तो ख्याल कीजिए, अपने माँ बाप को ऐसे दुख मत दें। वालिदैन 10 बच्चों को घर में रख सकते हैं, पाल सकते हैं, मगर 10 बच्चे एक वालिदैन को नहीं संभाल सकते। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में बार बार फरमाया, अपने वालिदैन की कदर करो, कल को तुमने भी वालिदैन बनना है। माँ जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है और तुम लोग अपनी जन्नत को बर्बाद कर रहे हो। इस मौजू पर अल्फाज बहुत हैं और वाकयात भी, मगर मुख्तसर बयान किया है।